Hello there. Well, today we are going to see part 2 of ophtha images. A lot of fundal images, also like other sort of images. So what is this image? If ever you see fundus in black and white, you'll just go for fundus, fluorescein, I forgot the spelling, angiography, right? So this is your fundus fluorescein angiography. जब भी कोई fundus image आपको black and white दिखे, so that test is fundus fluorescein angiography, right? What is this? Now you can see some sort of tear over here, right? And this is your regmetus, retinal detachment, right? This is your regmetus retinal detachment, but with horseshoe tear. This is your horseshoe tear. So as you can see here, it looks like a horseshoe, isn't it? And also this is very dangerous sort of tear. Horseshoe tear is the most dangerous type of tear. Okay, what is this? So it looks really beautiful. So do you see this depression? But just draw a line over here and over here. It looks like an M, right? So this imaging we do it for macular diseases. But what is it? Let me write diseases first. But what is it? This is your coherence tomography. It's called coherence tomography. Okay, so next, what is this? This everyone should know. It looks like vessels are proliferating, ain't it? It looks like that. So this is your proliferative diabetic retinopathy. And you know, this new vessels, they are usually very leaky. They are new vessels. They don't know how to hold things properly. जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब गिरा देते हैं, खाने को दो उनको, तुझा खाते इतना सारा गिराते हैं. So these vessels are like that. They are like new babies. So what we should do? Otherwise there will be bleeding, right? तो इसको ठीक करना है. तो for this we do pan-retinal photocoagulation. So you'll just coagulate this new vessels and ठीक है. फिर ये किस में करेंगे? Proliferative diabetic retinopathy में करेंगे, right? This looks like a splashed tomato. I never have confusion when this photo arrives. This is your splashed tomato appearance. Tomato की spelling tomato. Okay, don't come कि मैंने tomato की spelling भी गलत कर दी. Okay, splashed tomato appearance, right? And what is this? सबको पता है, मुझे भी पता है, वहाँ से चिल्ला रहे होगे आप लोग. This is CRVO, central retinal vein occlusion. So there is occlusion of the central retinal vein. लेकिन मैं बोल रही हूँ vein. देखो ना, vein बड़ा होता है and artery उससे छोटा होता है, तो vein फूटेगा तो एकदम से splash जैसे होगा, है ना? So this is your CRVO, central retinal vein occlusion, right? अभी ये वाला क्या है? This is cherry red spot. This part, cherry red spot. किस में दिखता है? CRAO. पहले वाला वेन था, अभी वाला आर्टरी है. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, ठीक है? चेरी रेड स्पॉट फॉर CRAO. ओके, व्हाट इज दिस? $1 million क्वेश्चन. सो डू यू सी दिस? रुको, चेंज करना पड़ेगा कलर. दिस डॉट, these are your KPs. These are your KPs. ओके, लेकिन आप ये देख रहे हो प्यूपिल, ये भी देखो इरेगुलर शेप का हो गया. सो KPs विथ इरेगुलर प्यूपिल.
Where do we see this? This we see in anterior uveitis. Anterior, बहुत गर्मी है आज. Anterior uveitis. uveitis की स्पेलिंग होपफुली सही हो. राइट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. देखो लेकिन एंटीरियर यूवीआइटिस है तो ये जो डॉट डॉट्स दिखेंगे ना आपको, ये थोड़े छोटे छोटे हैं. बट अगर मैं एंटीरियर की जगह ग्रैन्युलोमेटस लिखती हूँ, ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस, ठीक है, तो ये अपना केपीस की जगह वो इसको क्या बोलेंगे, मटन फैट केपीस. मटन ग्रैन्युलोमेटस, बड़ा बड़ा मटन फैट केपीस. सॉर्टेड. ठीक है, अभी ये वाला इमेज देख के समझ में आएगा क्या है इस इमेज में. इस इमेज में देखो ये काला काला का क्या है, ये दिस इज पिगमेंट, राइट. सो दिस इज योर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है. और इसमें ना एक ट्रायड होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर. तो ये बना दिया मैंने ट्रायंगल, जो कि थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, ट्रायंगल तो है. सो यू नो दिस पिगमेंट्स, राइट. व्हाट इज द शेप ऑफ दीज पिगमेंट्स? इट इज स्पिक्यूलेटेड. देखो ऐसे स्पिक्यूल्स जैसे सा है. सो यू नो बोनी स्पिक्यूलेटेड पिगमेंट्स, बोनी स्पिक्यूलेटेड पिगमेंट्स, ठीक है. इधर क्या है, वैक्सी थ्रेड लाइक आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स, हाँ. और लास्ट में क्या है, पेल डिस्क, पेल डिस्क. दैट्स ऑल. सो दिस इज द ट्रायड दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा. ओके, अभी ये वाला देखो, ये वाला तो देखते साथ समझ में आता है कि दिस इज योर पिज़्ज़ा चीज़ अपीयरेंस. पिज़्ज़ा चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा. ओके, ठीक है, चीज़ पिज़्ज़ा अपीयरेंस, ठीक है. ये किस में दिखता है? सो वी सी पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा इज रिलेटेड टू CMV, ठीक है. इट इज़ रिलेटेड टू CMV. एंड ये हो किधर है, फंडस में हो रहा है. दैट मीन्स यू नो इट विल बी कॉल्ड एज CMV रेटिनाइटिस, रेटिनाइटिस. सो चीज़ पिज़्ज़ा अपीयरेंस इज फॉर CMV रेटिनाइटिस. ओके, व्हाट इज दिस? जब भी आपको मक्खी दिखे ना तो ऐसे समझना कि 3D में मक्खी देखना है. 3D में दैट मीन्स वो मक्खी को ऐसे ऐसे देखना कि कितना डेप्थ है वो मक्खी का वगैरह. सो दिस इज योर टिटमस फ्लाई टेस्ट. ओके, टिटमस फ्लाई टेस्ट. और किसके लिए होता है? दिस इज फॉर स्टीरियोप्सिस. स्टीरियोप्सिस, स्टीरियोप्सिस का मतलब मैंने बोला था ना 3D डेप्थ, डेप्थ देखनी है उसको. डेप्थ को बेसिकली वी सी स्टीरियोप्सिस, कितना डेप्थ है. सो ओके, नो कन्फ्यूजन. फिर से देख लो, फिर से सब देख लेते हैं स्टार्टिंग से. रिविजन. ओके, सो दिस इज जब भी फंडस दिखेगा ब्लैक एंड वाइट, सो दैट इज़ योर फंडस फ्लोरोसिन. एंजियोग्राफी की गई है. यहाँ पे हॉर्सशू टीयर है एंड देयर इज रेगमेटस रेटिनल डिटैचमेंट. ओके, एंड दिस कलरफुल सा सुंदर सा आपको दिखता है. यहाँ पे डिप्रेशन है. सो दैट इज़ फॉर योर मैक्युलर डिसीजेस. देयर इज़ कोहेरेंस टोमोग्राफी. ओके, एंड इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं. प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी. ओके, ये वाला क्या है? ये वाला है पैन रेटिनल फोटो कोएगुलेशन. ओके, फिर ये वाला क्या है? स्प्लैश्ड टोमेटो अपीयरेंस CRVO में, ठीक है. फिर ये चेरी रेड स्पॉट अपना CRAO में. फिर ये है अपना केपीज विथ इरेगुलर टाइप वाला प्यूपिल, दैट इज योर एंटीरियर यूवीआइटिस. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस, देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट मटन फैट केपीज. ग्रैन्युलोमेटस यूवीआइटिस, मटन फैट केपीज. ओके, ये वाला क्या है? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है. इसका ट्रायड देखते हैं. पेल डिस्क होगा, बोनी स्पिक्यूलेटेड पिगमेंट्स होंगे और वैक्सी या थ्रेड लाइक आर्टेरियोल्स होंगे. ओके, राइट. फिर इसके बाद पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ा लिखा है मैंने.
पिज़्ज़ा अपीयरेंस, चीज़ पिज़्ज़ा अपीयरेंस किस में दिखता है? CMV रेटिनाइटिस में दिखता है, ठीक है। फिर ये मक्खी वाला टेस्ट कौन सा होता है? स्टीरियोप्सिस, ओके, फॉर यू नो मेजरिंग द डेप्थ, ठीक है। फिर ये वाला देखो, ये वाले बच्चे का एक आँख जो है वो इधर जा रहा है, अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरा दूसरा आँख भी फॉलो करता है ना, और ऐसे करूँ तो ये भी फॉलो करता है इधर। सो अगर फॉलो नहीं किया ना तो ये देखो ये बाहर की तरफ है, बट adduction part is missing, so I would say there is adductor palsy in this, and this is called as exotropia, exotropia। और अगर inwards है तो that is your esotropia, that is your esotropia। हाँ ठीक है। and what are these? This is called as, मैं खुद ही squint, squint, these are types of your squints, एक्सोट्रोपिया, इज़ोट्रोपिया। और एक मैं थोड़ा सा छोटा रूल बताना चाहूँगी स्क्विंट में, या फिर यू नो करते क्या है, वो सर्जरी का रूल है। एक तो अपोजिट वाली को वीक कर दो, या फिर जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर दो। सो जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे आप? बाय रिजेक्टिंग। if you reject it, that will have stronger pull, so on the affected side strong कर दो, या फिर opposite side वाले को weak कर दो stretch करके, ओके ठीक है। तो समझ में आया, वो सर्जरी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रूल। अभी ये वाला देखो, दैट इज योर डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, ठीक है। अभी इसमें देखो डायरेक्ट में देखो ऐसे कांटेक्ट नहीं ना, उसके हाथ का कांटेक्ट है देखो दूसरे के सिर से, और बहुत नज़दीक है। सो दैट इज़ योर डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी। नाउ लेट अस सी इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी। दिस पिक्चर कम्स अ लॉट, एंड दैट इज़ योर इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप, इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोप, राइट। और ये वाला जो टेस्ट है, दिस टेस्ट इज़, कैसे दिखाओ, हाँ, दिस टेस्ट इज इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी। इसके माथे में और इसके माथे में कितना डिफरेंस है देखो। सो दैट इज योर इनडायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, राइट। नाउ दिस इज पिन होल। पिन होल का एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। पिन होल में देखो ये डिस्क के जैसे है, एंड दिस इज 1 मिलीमीटर, इधर लिखना है, 1 मिलीमीटर वाला होल है। और अगर आप इस होल में से देख रहे हो, और अगर आपका विजन इम्प्रूव होता है, इफ़ योर विजन इम्प्रूव्स, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। और अगर आपका विजन डिक्रीज होता है, वर्सन होता है, सो इसका मतलब आपको सेंट्रल पैथोलॉजी है। सेंट्रल पैथोलॉजी मतलब कोई भी मैक्यूलर डिसीजेज होगी, या फिर ऑप्टिक डिस्क ही ख़राब है, या फिर ऑप्टिक नर्व का कुछ तो भी लफड़ा है। तो दिस इज़ योर पिन होल। अगर इम्प्रूव हुआ तो रिफ्रैक्टिव एरर, ओके। इन शॉर्ट देखो कितना छोटा सा है, हैंडी सा है, और बहुत ईजी है ना, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ की काम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक चीज़ का काम नहीं है, ठीक है। ये वाला क्या है? दिस इज़ योर चलेजियन, राइट। और ये क्या है? ये है चलेजियन क्लैम्प, चलेजियन क्लैम्प, राइट। तो ये चलेजियन क्लैम्प बहुत बार आता है, और ये चलेजियन है, ठीक है। तो इसमें देखो ये ऐसे जो बीच में का एम्प्टी है, दैट इज़ फॉर यू नो होल्डिंग द चलेजियन, दैट्स व्हाई इट्स अ क्लैम्प। And what is this? I talked about in my first of the chapter 1, sty, राइट। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, पास का नहीं दिख रहा है, तो वो आँख को ऐसे रगड़ के क्या करेंगे? स्टाई फॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ योर स्टाई। और मायोपिया में क्या होगा? मायोपिया में ऐसे दिखेगा, स्लिट के जैसे हो जाएगी आँख उसकी, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसे करने से उनको दिखता है, मुझे भी दिख रहा है, लाइक थोड़ा बेहतर दिख रहा है। सो दैट इज़ योर मायोपिक गेज, राइट। और ये वाला क्या है? ये सबको पता है, दिस कम्स इन पैथोलॉजी ऑल्सो एंड इन ऑप्था ऑल्सो। दिस इज योर फ्लेक्सना विंटरस्टीनर रोसेट। Is that a true rosette or a false rosette? So that is true rosette. देखो प्रीति मैम ने, याद करो क्या कहा था, अगर अंदर का पार्ट रुको अलग कलर लेना पड़ेगा।
अगर अंदर का पार्ट एम्प्टी है, इधर देखो एम्प्टी है ना, वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, तो अगर अंदर का पार्ट एम्प्टी है मतलब उसके दिल में कोई ऐसे बात नहीं है कि, मतलब कोई ऐसी दबी हुई बात नहीं है कि कोई ऐसी दबी हुई बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ योर ट्रू रोजेट। और अगर तो ये भरा भरा रहेगा अंदर से, तो इसका मतलब ये इसके दिमाग दिल में इल इंटेंशंस है। सो दिस ब्लू थिंग इफ़ इट इज़ देयर, सो दैट इज़ द इल इंटेंशंस एंड दैट इज़ योर सूडो रोजेट। ठीक है, समझ में आ गया। सो बस इतना ही था, ये वाली तो हमने देख के रखी थी पार्ट 1 में, दीज ऑल इमेजेस करा है। ओके, लेट अस जस्ट रिवाइज एवरी डैम थिंग। पहले से पार्ट 1 भी रिवाइज करेंगे, पार्ट 2 भी करेंगे, पहले पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो लैम्प जो जाते साथ आपको दर्शन होंगे ये वाले मशीन के, सो दैट इज़ योर स्लिट लैम्प। फिर ये वाला देख रहे हो आप, दैट इज़ योर स्नेलेंस चार्ट। फिर ये वाला देख रहे हो, दैट इज़ इशिहारा कलर चार्ट्स। फिर ये है केस हिस्ट्री किसकी, वर्नल कैरेटोकंजंक्टिवाइटिस, योर स्प्रिंग कैलरा। ओके, फिर ये वाला क्या है, आर्ट्स लाइन दैट वी सी इन ट्रैकोमा। ट्रैकोमा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ स्ट्रैटेजी, एस फॉर सर्जरी। एंड सर्जरी में क्या, किसके लिए सर्जरी करेंगे ट्रैकोमा में, सो यू नो इनवर्ड हो जाएंगे अपने आई लैश अगर इंटर्न्ड है, सो दैट इज़ योर ट्राइकियासिस, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन से देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, कितना डोज, 1 डोज। एफ से क्या है, फेशियल क्लेनलीनेस। ई से क्या है, एनवायरमेंटल क्लेनलीनेस। ओके, सो ये वाला क्या है, ये वाला फंगल अल्सर है। फंगल अल्सर के मार्जिन्स कैसे होते हैं, इल डिफाइंड, फेदरी, ठीक है। और बैक्टीरिया के कैसे होते हैं, बैक्टीरिया के वेल डिफाइंड होते हैं। फंगल का हाइपोपियन, ये ऐसे दूध जैसे सेटल डाउन जो हो गया, दैट इज़ योर हाइपोपियन। फंगल का कैसे होता है, इमोबाइल, एक ही जगह पे। एंड बैक्टीरिया का कैसे होता है, बैक्टीरिया जैसे मूव करते रहता है, सो उसका हाइपोपियन भी मोबाइल, ओके। एंड फंगल का इमोबाइल। और फंगल का नॉन स्टेराइल है, बैक्टीरिया का स्टेराइल है, मतलब वो बैक्टीरिया है, ये स्टेराइल कैसे, बट स्टेराइल है, ठीक है, तो अपोजिट है, ठीक है। और फंगल की खासियत बताओ फंगल अल्सर की, दैट इज़ योर सैटेलाइट लीजन्स, ओके। फिर ये वाला अपना डेंड्राइटिक अल्सर है जो कि वायरल केसेस में होगा, एंड स्पेशली HSV, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। ये वाला क्या है, जो बल्जिंग आउट ऑफ कॉर्निया, दैट इज योर केरेटोकोनस। ये वाली साइन कौन सी है कि लोअर आईलिड ऐसे वी शेप का बन रहा है, दैट इज योर मंसन साइन, ओके। ये वाला क्या है, ये वाला केरेटोप्लास्टी है। और एक छोटा सा ये कर लेते हैं, यू नो, रिकैप ऑफ केरेटोकोनस। रिजूटी साइन दिखेगा, ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स दिखेगा, कॉर्नियल हाइड्रॉप्स दिखेगा, और क्या है, वोग्स स्ट्राया दिखेगा। सो रिजूड इज़ लाइक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे तो ऑब्वियसली मोटा हो जाओगे। ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयली खाना खाओगे तो भी मोटे हो जाओगे। और क्या, अपना हाइड्रॉप्स नाम से पता चल रहा। फिर वोग्स स्ट्राया, वेजिटेबल स्ट्रिप्स। लेकिन वेजिटेबल स्ट्रिप्स कैसी है, आप रिजूटी रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो तो वो तेल में तली है, बटर में तली है, सो ऑब्वियसली मोटे हो जाओगे। तो दैट इज़ इन शॉर्ट योर केरेटोकोनस। आई होप मेरा बनाया निमोनिक आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे लॉजिकल लगे, क्योंकि यूजुअली आई लाइक नॉन लॉजिकल थिंग्स, नॉन सेंसिकल थिंग्स, तो आई होप कि आपको याद रहेगा। दिस इज़ योर इंटैक्स जो कि सपोर्ट देता है कॉर्निया को। एंड दिस इज़ योर टेरिजियम, राइट। टेरिजियम कौन से एनवायरनमेंट में होगा, जब धूल मिट्टी डस्टी एनवायरनमेंट में होगा टेरिजियम, ओके। रोजेट कैटरैक्ट, ब्लंट ट्रॉमा, ऐसे मुक्का मारा मैंने आपको तो आपको तारे दिखेंगे। सो ये देखो तारों के शेप वाला रोजेट है, दिस इज़ योर रोजेट कैटरैक्ट, ओके। फिर ये वाला कौन सा ये है टेस्ट, एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो गोल्डमैन एप्लिनेशन टोनोमेट्री, किसके लिए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लिए, ओके। फॉर ग्लाउकोमा एंड स्टफ वी डू दिस। ये वाला क्या है, ये है बुफ्थैल्मस, बुल जैसा कॉर्निया है, मेगालो कॉर्निया। ये किस में होता है, कंजेनाइटल ग्लाउकोमा में होता है। दिस इज़ योर इरिडोटोमी, वी डू दिस प्रोसीजर फॉर व्हाट, एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, ओके। पार्ट 1 हो गया, अभी पार्ट 2 रिवाइज करेंगे, जल्दी से करेंगे, डोंट वरी। वैसे भी आप 1.5 या 2 की स्पीड में देख रहे हो, मुझे पता है। अरे रुको एक सेकेंड, ये हो ही नहीं रहा,
ओके, सो दिस ब्लैक एंड वाइट फंडस इमेज है, तो कौन सी वाली एग्जामिनेशन हो रही है? फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, ठीक है। ये वाला अपना हॉर्सशू डियर है विथ रेगमेडस रेटिनल डिटैचमेंट। ओके, ये वाला क्या है? मैक्यूलर डिसीजेस के लिए ऐसी एग्जाम होती है, कोहेरेंस टोमोग्राफी। ओके, ये वाला क्या है? प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, ठीक है। ये वाला क्या है? प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन लेजर। ओके, ये वाला क्या है? स्प्लैश टोमेटो अपीयरेंस किस में दिखेगा? जब वेन स्प्लैश हो जाएगी, CRVO, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन। मुझे हंसना नहीं था क्योंकि दीज आर सीरियस, क्या बोलते, सीरियस डिसीजेस, कंडीशंस, ठीक है। ओके, ये वाला क्या है अपना? चेरी रेड स्पॉट, CRAO, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, चेरी रेड स्पॉट। ओके, ये वाला क्या है? केपीस दिख रहे हैं। केपीस होता क्या है? केपी बोलते जा रही हूँ, लेकिन केपी है क्या? सो दैट इज योर केराटिक प्रेसिपिटेट एंड यू नो ये इरेगुलर प्यूपल भी इरेगुलर शेप का होगा। ये किस में दिखेगा? इंटीरियर यूवियाइटिस में दिखेगा। ग्रैनुलोमेटस यूवियाइटिस बोलती हूँ तो उसमें क्या होता है? मटन फैट केपीस का साइज बहुत मोटा मोटा होता है, ठीक है। और एक चीज़ बतानी थी आपको, देखो अगर तो ये केपीस ऐसे फॉर्म में ये हो जाते हैं, ऐसे नीचे ट्रायंगल के जैसे बनाते हैं, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड? सो दैट इज योर आल्स ट्रायंगल, ठीक है। ये भी एक चीज़ है जो याद रखो। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा अपना जो पिगमेंट है राइट, वो स्पिक्यूलेटेड बोनी स्पिक्यूलेटेड पिगमेंट्स होते हैं, मतलब स्पिक्यूलेटेड शेप होता है उसका। पेल डिस्क होगा, देखो पेल डिस्क, हाँ, और वैक्सी थ्रेड लाइक आर्टेरियोल्स, ठीक है। चीज़ पिज़्ज़ा अपीयरेंस किस में होता है? CMV, फाइनली मैंने सही बोला, चीज़ पिज़्ज़ा अपीयरेंस CMV रेटिनाइटिस में दिखता है। फिर ये मक्खी वाला कौन सा टेस्ट होता है? सो दैट इज योर स्टीरियोप्सिस, अपना 3D डेप्थ चेक करने के लिए होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज टिटमस फ्लाई टेस्ट, टिटमस फ्लाई टेस्ट। ओके, अभी ये स्क्विंट्स देखते हैं तो बाहर की तरफ है तो इसको एक्सोट्रोपिया बोलेंगे, अंदर की तरफ है सो दैट इज योर ईजोट्रोपिया। ये वाला डायरेक्ट ऑफ्थाल्मोस्कोपी, देखो माथे का फोरहेड distance between forehead is less, that is your direct ophthalmoscopy, and distance between two foreheads is very high, that is your indirect ophthalmoscopy, and this is your indirect ophthalmoscope, right। ये वाला पिन होल है, पिन होल में एक डिस्क होता है और एक होल होता है 1 मिलीमीटर का। उस होल में से देखो, सब बोल के रखा है मैंने, उस होल में से देखोगे अगर इम्प्रूव हो गया विजन तो रिफ्रैक्टिव एरर, अगर डिक्रीज हो गया, वर्सन हो गया विजन तो दैट मीन्स सेंट्रल पैथोलॉजी है। ये वाला चलेजियन है, ठीक है, चलेजियन का क्लैम्प है ये वाला। ओके, एंड दिस इज योर स्टाई, किस में होगा? स्टाई हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड है स्टाई, वैसे तो कैसे भी हो सकता है बट या। फ्लेक्स नर्व, इंटेस्टिनल रोसेट किस में दिखता है? वो तो लिखा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट किस में दिखता है? आई नो यू गाइज नो दिस राइट। ये वाला है रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा कर ले अभी हो जाएगा। फिर अभी बस एक मिनट का 1 मिनट बचा है, बस 1 मिनट में हो जाएगा। रेटिनोब्लास्टोमा में देखो नट्सन्स 2 हिट हाइपोथेसिस रिलेटेड, मैं बस मुंह से बोलती हूँ, नहीं लिख भी लेती हूँ। नट्सन की 2 हिट हाइपोथेसिस रिलेटेड है रेटिनोब्लास्टोमा से। एंड क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? प्यूपिलरी वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स या फिर ल्यूकोकोरिया, एक सेकेंड, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स को ही क्या बोलते हैं हम? ल्यूकोकोरिया, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोकोरिया, ठीक है। एक तो वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और ल्यूकोकोरिया मेंशन किया रहेगा, और भी क्या कर सकते हैं वो लोग? मेंशन कर सकते हैं कि कॉलीफ्लावर लाइक मास, कॉलीफ्लावर की भी स्पेलिंग मैं भूल चुकी हूँ। कॉली, एक तो यू आता है, ओके, आई एम नॉट श्योर। कॉलीफ्लावर आई थिंक सही है, कॉलीफ्लावर लाइक मास भी दिखेगा किसमें? अंदर, आँख के अंदर। सो दैट इज बिकॉज ऑफ कैल्सिफिकेशन
राइट तो अगर तो दो चीज़ें मेंशन है, वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स ल्यूकोकोरिया एंड ऑल्सो कॉलीफ्लावर लाइक मास, तो दैट इज़ योर रेटिनोब्लास्टोमा. ओके, हो गया. Finally we are done. So did you like this class? Did you guys enjoy this? And what do you think about ophthalmology now? थोड़ा इजी बन गया, आई होप कि थोड़ा सा इजी बन गया होगा. एंड नेक्स्ट इसमें क्या करूँगी मैंने सोचा तो था कि छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँ, लेकिन अभी ऐसे है कि ये मेरा ऑफ्था का किताब है जिसमें मैंने सब कुछ लिख के रखा है. सो ये अराउंड 60 पेजेस वगैरह होगा. आई ऑल्सो मेड लॉट ऑफ चार्ट्स जिसमें सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें मैं एक चार्ट में लिख के ऐसे ख़त्म कर देती थी. सो व्हाट माई प्लान इज़ दैट मैं एक बड़ा सा रैपिड रिविजन करके पूरा ऑफ्था एक ही वीडियो में उड़ा दूँ. मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि बर्डन आ जाएगा बच्चों को, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी कि वही कर लूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस बनाना इस टाइम कंज्यूमिंग. देखो लिपस्टिक लगानी पड़ती है, आईलाइनर लगाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है थोड़ा. बाकी तो सब ठीक है. एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. एंड और क्या, भूख लग गई मुझे. बाय.